Morning children. Yesterday I taught you half lesson. The name of the lesson was changes in our surrounding. What is the name of the lesson? That is changes in our surroundings. Okay. See, you see in the picture what you can see. The morning part. See, sun is rising so brightly. You can see it. Yeah, that is the morning part. See, people around us set themselves to work too. We also get ready to go to school. Means in the morning, everyone go to their work. They go for the service. Then the animals also, they go in search of the food, animals and birds. Okay, that is the morning part. See the morning so brightly. You can see the in the picture sun is rising. Yes. Now next is the children are also going to school. Yes, in the morning. Now next is, see, cow herds take cows and buffaloes out to graze. See in the picture you can see the people are taking the cows and buffaloes for to graze them. Graze यानी उनको चरने चरने के लिए लेके जाते खेती में, कि नहीं? हाँ, farmers they take the cattle for grazing. Once their stomachs are full, they sit in a quiet place and ruminate. इसका मतलब क्या है? यानी जब भी वो एक जगह पे बैठ यानी जब भी उनका पेट भर जाता है पूरा, हाँ, फुल हो जाता है, तो दे सिट इन अ क्वाइट प्लेस एंड रूमिनेट. यानी देखो, यानी जब भी द फार्मर्स, द पीपल, दे टेक देयर कैटल्स for grazing. Okay, and when the stomach is full, see the cattle stomach is full, so see they have sat, you can see the in the picture they are sitting on the grass. You can see it. Yes, they sat they are sitting for a while. देन एंड रूमिनेट का मतलब क्या है? यानी जो उन लोग ने जो खाया है, जो चारा बिरा उन लोग ने जो खाया है, वो लोग रूमिनेट करते हैं. तो रूमिनेट यानी वो एक जगह पे बैठ के उसको चू करते हैं. अंडरस्टूड? आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूमिनेट. दैट इज रूमिनेशन. सी, in the evening the cattle return to their sheds, flocks of birds return to their nest, we return home from school. तो देखो, जब भी सुबह होती है, दैट इज़ इन द मॉर्निंग, everyone go to their work. Okay, we also go to the school. Children go to the school, teachers also come in school. Yes, then the cattle they go out to graze. Huh? Then when the stomach is full, see in the picture you can see, when the stomach is full, the cows are sitting on the grass. You can see it. Yes, that is for rumination. In the evening the cattle return to their sheds. In the evening, that is यानी शाम के टाइम पे जो कैटल्स रहते हैं वो लोग अपने अपने वापस शेल्टर में लेके जाते. सी इन द दैट इज द इवनिंग पार्ट. यू कैन सी द सन इज सेटिंग डाउन. यू कैन सी इट. सी, सन इज सेटिंग डाउन एंड ऑल द कैटल्स आर गोइंग इन देयर शेड्स. यानी वो लोग अपने अपने घर में जा रहे हैं, यानी शाम के टाइम पे. अंडरस्टूड? Then we also return to our houses. Children are going back to their to their homes, and flocks of birds return to their nests. See the flocks of birds, you can see, that is the evening part. यानी शाम के टाइम पे देखो, see the sun, yes, so brightly it is setting. You can see this is so colorful it is. You can see, हाँ, यानी शाम के टाइम पे जो birds रहते वो लोग भी अपने अपने घर पे जाते हैं. एनिमल्स भी जहाँ पे जो उनका शेल्टर रहता है वहाँ पे वो लोग जाते हैं. ओके, वी टू रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल. यानी जब स्कूल ख़त्म होता है तभी शाम के टाइम पे बच्चे भी अपने अपने घर पे जाते हैं. सी इन द पिक्चर यू कैन सी चिल्ड्रंस आर गोइंग टू देयर होम्स. येस, बट सम नॉक्टर्नल एनिमल्स सेट आउट टू सर्च फॉर फूड आफ्टर द सन सेट्स. Nocturnal animals, see over here, nocturnal animals. See in the picture what you can see, animals that are active at night are nocturnal. तो nocturnal का मतलब क्या है? यानी जो एनिमल्स और बर्ड्स जो एक्टिव रहते हैं, यानी रात के टाइम पे वो लोग एक्टिव रहते हैं, यानी जागते रहते हैं, उन्हीं को नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं. ओके, दैन एनिमल्स एंड बर्ड्स. तो नॉक्टर्नल का मतलब समझ में आया? द एनिमल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट, यानी पूरे दिन में वो लोग सोते रहते हैं और रात में वो लोग जागते रहते हैं. सी द पिक्चर्स आर ऑल्सो गिवन ऑफ द आउल, देन बैट इज देयर, कोयोट इज देयर, देन रकून. सो ये जो है ना वो नॉक्टर्नल एनिमल्स है. ओके, एनिमल्स एंड बर्ड्स. अंडरस्टूड? और मैंने और मोर पिक्चर्स दिए ऑफ द नॉक्टर्नल एनिमल्स एंड बर्ड्स. यू सी इट. ओके, सी, then moths, crickets and glowworms are some such animals. Tigers, bats and owls are also nocturnal animal. तो टाइगर, बैट, ये सब क्या है? नॉक्टर्नल एनिमल, क्योंकि ये लोग रात के टाइम पे एक्टिव रहते हैं, यानी उनको शिकार मिलता है रात के टाइम पे.
अंडरस्टूड। पूरे दिन में वो लोग सोते रहते। टाइगर्स तो वो दिन में नहीं सोते। देन टू दे सर्च फॉर फूड, पर मोस्टली वो लोग जो टाइगर्स रहते, लायन टाइगर्स, उन लोग को रात में बराबर से दिखाई देता है। अंडरस्टूड। सो दे आर वेरी एक्टिव एट नाइट, tigers. Okay, now see here the pictures are given of the nocturnal animals and birds. See, bat is given. Bat का मतलब पता है, रात के टाइम पे घूमता रहता है ना, झाड़ के इधर, यस, उसी को बैट कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज रकून, देन माउस, फॉक्स, स्पाइडर, आउल, ओपोसम, स्कंक एंड मॉथ। तो ये जो एनिमल्स, बर्ड्स है, ये क्या है? इट इज़ अ नॉक्टर्नल एनिमल. सो नॉक्टर्नल, यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉक्टर्नल? नॉक्टर्नल एनिमल्स मीन विच दे आर एक्टिव एट नाइट, यानी वो लोग रात के टाइम पे शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं. अंडरस्टूड? दे आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स और बर्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रात रानी, क्वीन ऑफ द नाइट, एंड रजनीगंधा ट्यूबरोज आर फ्लावर्स दैट ब्लूम एट नाइट. यानी इसका मतलब क्या है? यानी देखो, और कौन सा है? दैट इज रात रानी. अभी देखो, इसी द पिक्चर इज गिवन, रात रानी दिखाई दिया आपको. रात रानी, क्वीन ऑफ द नाइट. क्वीन ऑफ द नाइट यानी ये जो फ्लावर्स है रात रानी, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा आता है. हाँ, तो ये जो रात रानी फ्लावर है, इसको क्वीन ऑफ द नाइट का है. क्वीन ऑफ द नाइट का मतलब क्या है? यानी वो रात के टाइम पे ब्लूम होता है. अंडरस्टूड? यानी खुलता है. देखो, सी, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रात रानी. यस, तो इसको रात रानी कहते हैं. अंडरस्टूड? इसके लिए उसको नाम क्या दिया है? व्हाट इट इज गिवन? क्वीन ऑफ द नाइट, यानी रात के टाइम पे वो खिलती है. गॉट इट? देन नेक्स्ट इज रजनीगंधा. उसको दूसरा नाम क्या है? ट्यूबरोज आर फ्लावर्स दैट ब्लूम एट नाइट. देखो ट्यूबरोज, देखो रजनीगंधा, यू कैन सी वाइट वाइट फ्लावर्स. हाँ, तो इसका भी स्मेल बहुत अच्छा आता है. अंडरस्टूड? तो ये जो टू फ्लावर्स, बोथ द फ्लावर्स, दैट इज रात रानी एंड रजनीगंधा, दे आर द फ्लावर्स दैट ब्लूम एट नाइट, यानी ये रात के टाइम पे ही खिलते हैं. गॉट इट? नाउ सी, rumination. Some animals graze until their stomachs are full. Later, they bring back the swallowed food into their mouth again, a little at a time, and chew it. अभी मैंने आपको कहा था रूमिनेशन का मतलब क्या है. रूमिनेशन का मतलब क्या है? जो एनिमल्स लेके जाते हैं चरने के लिए कि नहीं, हाँ, घास भी वो लोग खाते हैं ना, दे ईट ग्रास एंड ऑल. तो व्हेन द स्टमक्स आर फुल, तो लेटर दे ब्रिंग बैक द स्वेलोड फूड इनटू देयर माउथ अगेन. यानी वो लोग जो खाना खाते हैं ना, तो वो लोग वापस मुंह में लेके आते हैं, और फिर वो लिटिल एट अ टाइम एंड चू इट, फिर वो लोग वापस चबाते रहते हैं. आपने कभी मीन्स नोटिस किया है, जब ये एनिमल्स लाइक काउज, बफेलो, जब ये वो लोग बैठते, तो उन लोग का मुंह ऐसे हिलता रहता है, यू नो. हाँ, तो उसी को क्या कहते हैं? रूमिनेशन कहते हैं. यानी वो लोग जो खाना वो लोग खाते हैं, यानी जो चारा वो लोग खाते हैं, वो लोग वापस मुंह में लेके आके वो लोग च्यू करते हैं, यानी चबाते हैं. अंडरस्टूड? जैसे हम लाइक हाउ वी आर च्यूइंग द फूड, है कि नहीं? हम लोग निकल जाते क्या? नहीं, हम लोग बाइट करते ना, च्यू करते कि नहीं, दांत से बाइट करते कि नहीं. हाँ, दैट इज़ कॉल्ड च्यूइंग. तो वैसे ही जो एनिमल जो रहते हैं, काउज एंड बफेलोज, वो लोग क्या करते हैं? च्यू करते हैं, यानी चबाते रहते हैं. ओके, देन दे स्वैलो द च्यूड फूड अ सेकेंड टाइम. दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन. उसी का मतलब क्या है? रूमिनेशन. समझ में आया? यानी जो खाना वो लोग खाते, यानी घास बीस जो खाते, पत्ते पीते, एनीथिंग लीव दे आर ईटिंग, तो वो लोग क्या करते? वापस मुंह में लेके आके वो लोग क्या करते? उसको चबाते. दैट इज कॉल्ड रूमिनेशन. अंडरस्टूड? रूमिनेशन हेल्प्स देम टू डाइजेस्ट देयर फूड प्रॉपरली. काउज एंड बफेलोज आर एनिमल्स दैट रूमिनेट. तो काउज और बफेलोज, ये जो एनिमल्स है, वो लोग रूमिनेट करते हैं, यानी वो लोग चबाते हैं. अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड द रूमिनेशन. गॉट इट? एंड नॉक्टर्नल एनिमल्स, तो मैंने कहा आपको नॉक्टर्नल का मतलब क्या है. विच द एनिमल दे आर एक्टिव एट नाइट, दे आर कॉल्ड nocturnal animals. Now see here the picture is given of the faces of the moon. You can see the faces of the moon, you can see it. Yes, now see, moving forward, the moon rises at different times every night. If you search for the moon at a fixed time every evening, you will see in different places. The shape of the moon also changes every day. इसका मतलब क्या है? The moon rises at different times
एवरी नाइट, यानी हर बार, यानी हर एवरी नाइट, यानी हर रात को जो मून, हम लोग को मून कभी दिखाई देता है, रात के टाइम पे क्लियरली दिखाई देता है. वाई वी कैन सी मून एट नाइट क्लियरली? बिकॉज इट इज़ डार्क एवरीवेयर. सो एंड इन द मॉर्निंग वाई वी कैन नॉट सी? बिकॉज इट इज़ लाइट, बिकॉज सनलाइट इज देयर. सो बिकॉज ऑफ द रेज ऑफ द लाइट we cannot see moon in the morning, we can see it at night clearly. yes, the moon rises at different times every night, यानी मून जब भी राइज होता है तो उसका टाइम अलग अलग रहता है हर रात में. ओके, एवरी नाइट, एवरी नाइट का मतलब यानी हर रात. इफ़ यू सर्च फॉर द मून एट फिक्स टाइम एवरी इवनिंग यू विल सी इट इन डिफरेंट प्लेसेस. यानी कभी आपने देखा है, जब भी अभी फॉर एग्जांपल अभी देखो आपने आज मून देखा है, तो वही टाइम पे अभी समझो आप 7 o'clock को मून को देखा है आज आपने शाम के टाइम पे, फिर वही कल आप लोग देखेंगे क्या वही टाइम पे? नो, वो चेंज होता रहता है. अंडरस्टूड? उसका प्लेस चेंज होता रहता है. यू विल सी इट इन डिफरेंट प्लेस. अभी समझो आज आपने 7 o'clock को देखा, तो वो कल दूसरे जगह पे रहेगा, दूसरे टाइम. अंडरस्टूड? द शेप ऑफ द मून ऑल्सो चेंजेस एवरी डे. तो इसका मतलब यानी जो शेप रहता है मून का वो चेंजेस होता रहता है. सी द इट इज़ गिवन, द शेप्स ऑफ द मून इज़ गिवन, यू कैन सी. उसी को क्या कहते हैं? फेसेस ऑफ द मून. अभी देखो, the day the moon looks completely round is called the day of the full moon. See the first picture, देखो आपको मून दिखाई दे रहा है कि नहीं? फुल पूरा मून दिखाई दे रहा है. यू कैन सी इट, फुल मून. हाँ, यानी आपको मून पूरा completely round यू कैन सी इट, दैट इज कॉल्ड द फुल मून डे. समझ में आया? उसी को फुल मून डे कहते हैं. नाउ फॉर 15 days आफ्टर दैट, फिर 15 दिन के बाद इट अपियर्स टू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. फिर 15 दिन तक वो कैसे, जो मून का शेप रहता है वो स्लोली स्लोली चेंज होता रहता है. इट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. देखो मून का शेप चेंज होता है, दिखाई दे रहा है. सी द सेकेंड पिक्चर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, दैट इज़ द लास्ट पिक्चर. है कि नहीं? कैसे चेंज होता रहता है. हाँ, तो ऑन द 15th डे इट कैन नॉट बी सीन एट ऑल. यानी जब भी 15 डे रहता है उसका मून का, तो वो दिन में 15th डे को वो मून का जो शेप रहता है वो हम लोग को नहीं दिखाई देता है. अंडरस्टूड? येस, तो दैट इज़ कॉल्ड द डे ऑफ द न्यू मून डे. तो उसको क्या कहते हैं? न्यू मून डे. समझ में आया? फुल मून का मतलब क्या है? यानी पूरा मून हम लोग को दिखाई देता है, दैट इज़ कॉल्ड द फुल मून. इट इज़ कॉल्ड पूर्णिमा. हम लोग पूर्णिमा में बोलते हैं ना. हाँ, आपने देखा होगा कैलेंडर में, देखो पूर्णिमा रहती है, देन अमावस्या रहती है कि नहीं? हाँ, तो हर महीने में पूर्णिमा और अमावस्या रहती है. गॉट इट? तो फुल मून का मतलब क्या है? पूर्णिमा. यानी जब भी आपको पूरा मून दिखाई देगा, दैट मीन्स इट इज़ द फुल मून डे, यानी पूर्णिमा. हाँ, देन जब भी आपको ऑन द 15th डे इट कैनॉट बी सीन एट ऑल. और जब भी 15th डे रहता है, 15वां दिन रहता है मून का, तभी आपको मून दिखाई नहीं देगा. तो उसी को क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड अ न्यू मून डे. व्हाट इट इज़ कॉल्ड? न्यू मून. यानी हम लोग क्या कहते हैं उसको? अमावस्या. समझ में आया? नाउ सी, आफ्टर द डे ऑफ द न्यू मून द मून अपियर्स टू ग्रो बिगर एंड बिगर फॉर 15 डेज. तो जब भी न्यू मून होता है, यानी अमावस्या ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद जो मून का जो शेप रहता है वो वापस बड़ा बड़ा होते जाता है. समझ में आया? ये ऐसा हर महीने ऐसा होता रहता है, हर दिन ऐसा होता रहता है. समझ में आया? क्योंकि हर महीने में पूर्णिमा और अमावस्या होती रहती है, समझ में आती रहती है. तो ये पूरे साल में ये रूटीन, ये प्रोसेस चालू रहता है. अंडरस्टूड? लाइक नाउ सी हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. है कि नहीं? फिर उसमें कितने सीजन्स रहते हैं? 3 सीजन्स आते हैं, दैट इज़ विंटर सीजन, समर सीजन एंड रेनी सीजन. तो ये कैसा डेली हर साल का रूटीन रहता है. दैट वे द फेसेस ऑफ द मून, यानी ये जो मून आपको दिखाई दे रहा है, जो शेप्स रहते हैं वो भी चेंज होता रहता है. गॉट इट? सो after the day of the new moon the moon appears to grow bigger and bigger for 15 days and is completely round again on the day of the next full moon day. समझ में आया? तो वैसे ही जब भी न्यू मून होता है, यानी जब भी अमावस्या ख़त्म होती है, तो उसके बाद जो मून जो रहता है उसका शेप जो रहता है वो बाद में बड़ा बड़ा होता रहता है, और बाद में 15 डेज़ के बाद वो आपको वापस पूरा दिखाई देता है, दैट इज़ द फुल मून डे, पूर्णिमा. समझ में आया? तो ये जो प्रोसेस रहता है वो हर बार रिपीट होता रहता है. गॉट इट? तो इसी को क्या कहते हैं? फेसेस ऑफ द मून. इट इज़ कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू?
Yes, the different shapes of the moon that we can see every day are called the faces of the moon. यानी हम लोग को जो different shape दिखाई देते हैं ना मून का, कभी कभी पूरा दिखाई देता है, फिर थोड़ा सा कम दिखाई देता है, फिर थोड़ा और कम दिखाई देता है, फिर और थोड़ा, है कि नहीं? तो जो शेप्स आपको दिखाई देते मून के, छोटे छोटे छोटे, फिर अगेन बढ़ता बढ़ता बिगर एंड बिगर, तो दैट इज़ कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून. अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून. Okay, then last, see, you can see the last shape of the moon, that is एकदम पतला सा है कि नहीं? ये ऐसा मून आप लोग कभी आपको कभी दिखाई देता है मालूम है? जब ये रमज़ान रहता है, रमज़ान फास्टिंग रहता है, पता है आपको? हाँ, तभी ये ऐसा शेप आपको दिखाई देता है मून का. अंडरस्टूड? तो ये बहुत ही लकी रहता है, यानी अगर ऐसे हम लोग देखेंगे ना तो इट इज़ वेरी गुड. हाँ, अच्छा रहता है, यानी बहुत, क्योंकि उसका जो शेप रहता है बहुत ही अच्छा दिखता है वो मून का. अंडरस्टूड? सो दिस इज़ कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून. समझ में आया? तो मून का शेप्स कैसे ये होता है 15 डेज़ के बाद. ओके, हाँ, 15 डेज़ तक. ओके, so this is called the phases of the moon. So here we have completed our lesson. That's okay. Now see, for homework what you have to do, you have to draw the these phases of the moon. ये जो shapes दिए आपको moon के, ये आपको book में draw करने हैं. Understood? This is your homework. Okay, that's all. Thank you. Bye.